Okay, so let's continue today's session. And our today's topic is JavaScript. Okay, जी भैया। our today's topic is Java. तो बच्चों JavaScript is what? JavaScript is a programming language, and it is it is used to add functionality functionality to the HTML page. Okay, so JavaScript is a programming language and it is used to add functionality to the HTML page, right? Now, one thing is here, we have already learned about the HTML and CSS, right? So in this series, if we say like anything on the web page, okay? anything anything on the web पेज, ठीक है? एनीथिंग ऑन द वेब पेज, मुझे कोई पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ, मुझे कोई हेडिंग लगानी है, मुझे कोई फॉर्म का कंट्रोल लगाना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, मुझे इमेज लगानी है, ठीक है? मुझे कोई डिव डिव लगाना है, ठीक है? मुझे कोई और टाइटल लगाना है, ठीक है? दैट एवरीथिंग related to HTML, that everything related to HTML, ठीक है? Now if we are talking about any type of style, any type of styling, right? So styling like color, background, right? Background, nav bar, huh? Grid concept, right? Grid styling, right? That all thing, font type, font style, ठीक है? Font style, right? Border, right? That that all thing that all thing related to CSS, right? ठीक है? So please confirm this is clear to all. So if we want to give the styling to our page, that means CSS. If we want to create the components on the web page, that is all about the HTML, ठीक है? Any content, that is all about the HTML, ठीक है? After these two things, if we are talking about any action, right? Any functionality, ठीक है? That all can be done by help of JavaScript only, ठीक है? How can we done it? By help of JavaScript, ठीक है? Let me show you Sir, one example. excuse me. Yeah. Sir, your screen is not visible. Okay, hope it is clear. So I said JavaScript is a programming language and it is used to add function to the web page. If we are thinking anything on the web page like paragraph, heading, form, text, image, div, title, that all related to HTML, right? That all related to HTML. If I'm talking about any styling, color, background, navbar, grid styling, font style, color, font color, border style, that all font type, ठीक है? That all thing based on the CSS concept, ठीक है? If we want to add any functionality on the web page, that is done by the JavaScript only, ठीक है? How we can done it? By help of
JavaScript only. ठीक है. Now let me show you one web page. For example, for example, for example, let me show you just yeah, web page. Let me open a web page. Let me open the web page. If I am writing here one W3 schools and I'm going to the tutorial of JavaScript. Okay. So if I'm talking about like ये जो बच्चों पेज है, ठीक है, ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ठीक है, ये सब कुछ HTML और CSS है. ठीक है. तो कह रहा है डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज. जितना भी कंटेंट दिख रहा है दैट इज व्हाट HTML. जितना भी लेआउट्स हैं, ठीक है, चाहे ये ग्रिड्स फॉर्म आ रहे हो, इधर हमारे लेआउट्स बन रहे हैं, वो सारे हमारे CSS, यानी कि स्टाइलिंग ऑफ द वेब पेज. कलर आ रहा है, नेबर आ रहा है, ये ठीक है, ये सब हाईलाइट हो रहा है, ये सब कुछ CSS है. जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है बिहेवियर, वी कैन से एक्शन, एक्शन ऑन द वेब पेज. ठीक है. जैसे अगर मैं ये बोलूं, अगर ये बोलूं कि यहां पर मैंने लिखा बच्चों जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल. ठीक है. अब अगर मैं यहां पर मैं इसको ओपन करूं और मैंने अपने अकाउंट से इसको लॉगिन किया हुआ है, देयर मे बी सम लॉगिन ऑप्शन. ठीक है. अगर मैंने इसको अपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूं और ये मुझे दिखाए कि हेलो अरुण, दिस इज द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल. someone else person, ABC person is open this website और उस पर्सन को दिखाए hello ABC JavaScript tutorial is here, something like that. So on behalf of login, on behalf of the content, हर बार जो एक्शन है, हर बार जो कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है, वो क्या हो रहा है बच्चों, डिफरेंट आ रहा है. ठीक है. तो दैट इज ऑल डन बाय द जावास्क्रिप्ट. ठीक है. आगे हम लोग इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड. ठीक है. हाउ कैन वी इंप्लीमेंट एंड ऑल. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द जावास्क्रिप्ट. क्लियर है. ठीक है. नाउ let me show you few more introduction related to this. Like मैं आपको जैसे एक ये बल्ब है बच्चों, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी, ये बल्ब शो हो रहा है यहाँ पे, ये बल्ब यहाँ पे शो हो रहा है, ये बटन है, बटन के ऊपर टर्न ऑन टर्न ऑफ लिखा हुआ है, दैट इज द HTML, दैट इज सम दैट ऑल डन बाय द HTML. लेकिन इस बल्ब के अंदर टर्न ऑन करते ही लाइट जल रहा है, यानी कि कलर आ रहा है, ठीक है, टर्न ऑफ करते ही ये बंद हो जा रहा है, दैट इज द जावास्क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट. इज इट क्लियर? इफ आई शो यू दिस पेज, ठीक है, इफ आई शो यू दिस पेज, so you can see there is the option of the document elementary by image. ठीक है. तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ये हमारा चेंज हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट और एलिमेंट्री बाय आईडी लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट this is what this is the JavaScript part, this is the JavaScript part, right? So what we have here, like if we are doing any functionality on the web page, so that is called the JavaScript. ठीक है. A very famous a very famous quotation about these three things, you know, that HTML is what, noun. HTML is what, noun. ठीक है. CSS is what, CSS is what, adjective, ADJECTIV, adjective. And what is the JavaScript? JavaScript is what, JavaScript the verb, or we can say action. ठीक है. Let's suppose if I am talking about a human, let's suppose one,
ठीक है, this is one human, right? If I'm talking about his physical attributes, ठीक है, भाई ये मोटा है, पतला है, लंबा है, ठीक है, हाइट कम है, ज़्यादा है, that is all about, that is all about physical attribute, that all about HTML, that is all. If I'm talking about भाई इसका कलर कैसा है, ठीक है, गोरा है, काला है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कपड़े कौन से कलर के पहने हुए हैं, कपड़े कैसे पहने हुए हैं एंड कौन से कलर के पहने हुए हैं, क्या पहना हुआ है, दैट इज द एचटीएमएल। कपड़े कैसे कलर के पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई, शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, कौन सा कलर उसके ऊपर है, दैट इज द सीएसएस। अगर मैं ये बोलूँ भाई ये कितनी तेज भाग सकता है, ये डांस कर सकता है कि नहीं, ये बोल कैसे सकता है, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, दैट इज ऑल अबाउट द सीएसएस। तो इन सिंपल HTML इज नाउन, ह्यूमन इज द नाउन। इसके ऊपर अगर हम बात करें कलर, कलर की बात करें, ठीक है, दैट इज व्हाट एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट्स। एंड अगर इसकी हम फंक्शनैलिटी की बात करें, हम चल सकता है, बोल सकता है, ठीक है, आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आई थिंक concept is clear about the JavaScript. Please confirm that what is the JavaScript. JavaScript means if we want to add functionality on the web page, that is called the JavaScript. ठीक है, and you know Java for any front end development, we required HTML, required CSS, and at least JavaScript. These three technology we highly required for the front end development. And if I'm talking about if full stack development, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं पाइथन एंड डिजेंगो फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों भाई आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, और आपको फ्रंट एंड में आपको बैक एंड आना चाहिए, और आपको डेटाबेस भी आना चाहिए, आपको भाई डिजाइनिंग की नॉलेज हो, डेटाबेस की नॉलेज हो, और ये हो। तो बच्चों फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है कि फ्रंट एंड आपने पढ़ लिया भाई HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर ली, ठीक है, कोई भी पाइथन यूज़ कर लिया आपने, जेंगो यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई भी पाइथन। डेटाबेस में आपने माइस्क्यूएल यूज़ कर लिया, ओरेकल यूज़ कर लिया, दैट इज द डेटाबेस। एक कंसेप्ट होता है बच्चों यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, दैट कंसेप्ट इज मीन। ठीक है, मीन मीन डेवलपर, ME, मीन डेवलपर, ठीक है। तो जो मीन जो डेवलपर है ना, दैट इज द फुल फॉर्म इज, व्हाट इज द ME मीन स्टैक डेवलपर का मतलब है बच्चों MongoDB, Express.js, AngularJS एंड Node.js। फुल स्टैक में क्या होता है, कि भाई आपने फ्रंट एंड तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से ही बनेगा। बैक एंड आपका आपने पाइथन यूज़ कर लिया, आपने PHP यूज़ कर लिया, आपने जावा यूज़ कर ली, ठीक है, और आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर ली, और बैक एंड में आपने ओरेकल यूज़ कर लिया, माइस्क्यूएल यूज़ कर लिया, PLSQL यूज़ कर लिया, SQLite यूज़ कर लिया, कोई भी यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द मीन डेवलपर, ठीक है, उसमें बच्चों ये 4 टेक्नोलॉजी यूज होती है, मेनली 4, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसका फुल फॉर्म ही इसलिए है MongoDB, ये डेटाबेस है, Express.js, AngularJS एंड Node.js, राइट।
तो बच्चों ये सारी जो चीजें हैं, ये दीज आर द फैमिली ऑफ जावा स्क्रिप्ट ओनली। ठीक है, ये सारे फ्रेमवर्क हैं और ये किस पर बेस्ड हैं? कंप्लीटली जावा स्क्रिप्ट पर बेस्ड। ठीक है, तो बच्चों जावा स्क्रिप्ट अपने आप में फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है, बैक एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है, ये डेटाबेस भी हमें दे रहा है मोंगोडीबी। ठीक है, सब कुछ जावा स्क्रिप्ट के पास, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। ये सारी ही जावा स्क्रिप्ट की फैमिली है, मतलब ठीक है, फ्रेमवर्क है। अगर हम बात करें बच्चों, जावा स्क्रिप्ट जो है वो सर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है या बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है? अगर हम बात करें कि सर ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है या फिर बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, तो बच्चों जावा स्क्रिप्ट तो जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, नो डाउट। ठीक है, फ्रंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर हमें बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करना है तो वी कैन गो विद नोट नोट ठीक है, कैन गो विद नोट जेएस। इसके बच्चों ये भी इसी की फैमिली है, जावास्क्रिप्ट की फैमिली है। ठीक है, तो उसी का एक लैंग्वेज है नोट जेएस। इस लैंग्वेज को हम यूज करके बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं जस्ट लाइक ए पाइथन प्रोग्राम। लेकिन फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट का ही यूज। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट डेवलपर कंसोल, डेवलपर्स कंसोल। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट डेवलपर कंसोल? तो डेवलपर कंसोल का मतलब क्या है? जैसे बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था पाइथन में भी, ठीक है, कि पाइथन का जो था उसमें क्या था कि ये आइडियली है, तो वेरी वेरी स्मॉल कोड वी कैन राइट 2+20, है ना, वेरी स्मॉल कोड वी कैन राइट है, कोड स्निप्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोड स्निप्ट। ठीक है, कोड का एक छोटा सा पार्ट, किसी भी कोड का छोटा सा पार्ट, स्निप्ट, SNIPPET। लेट मी शो यू कोड स्निप्ट। ठीक है, कोड स्निप्ट, CODE SNIPP, कोड स्निप्ट। स्निप्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। ठीक है, छोटा छोटा किसी भी कोड का छोटा सा पार्ट, स्निप्ट, राइट। तो बच्चों हम यहाँ पर जितने भी आईडी, ये हमारा पाइथन का आईडीएल है, यहाँ पर हम छोटे छोटे कोड्स को, मेन तो हम आईडी हम अभी हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं बिग कोड लिखने के लिए, या फिर मैंने पाइथन का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक आईडीएल है, इंटरेक्टिव मोड है, और एक हमारा स्क्रिप्ट मोड है। तो स्क्रिप्ट मोड पे हम मोर देन 1 लाइन कोड लिखते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर इसका एक कंसोल है जहाँ पर हम पाइथन के छोटे छोटे कोड्स को रन कर सकते हैं, सेम वे वी हैव अ we have the concept for the javascript। ठीक है, सेम हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए भी सेम कंसेप्ट है। तो हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी डेवलपर कंसोल का यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? बस हमें कोई भी पेज ओपन करना है, राइट, और पेज ओपन करने के बाद वहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और इंस्पेक्ट पे बच्चों अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे सीधी सीधा ऑप्शन है बच्चों कंसोल का। देखो यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, लेट मी, ठीक है, चलिए। तो ये कंसोल कंसोल बच्चों ये है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए कंसोल है, और जैसे वहां पे हम छोटे छोटे कोड कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली स्निप्ट कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1+2 3 आ गया, फिर मैंने लिखा 3 -5, ठीक है, -2 आ गया। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कोड को चेक करके लिख सकते हैं। ये हमारा कहलाया जाता है जावास्क्रिप्ट कंसोल। ठीक है, और इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+J। ठीक है, वेब पेज पे जाके आप Ctrl+Shift+J प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली कंसोल, मैंने क्या बताया, Ctrl+Shift+J, दिस इज द शॉर्टकट की, जहाँ से आप अपने इस जावास्क्रिप्ट के कंसोल को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हमें कुछ भी काम करना है और हम ये चाहते हैं कि भाई ये कंसोल को हम क्लियर करें, तो यहाँ पे बच्चों एक फंक्शन है क्लियर, CLER, क्लियर फंक्शन है। यहाँ पे क्लियर फंक्शन पे कॉल कर देंगे, ये जो भी हमारा कंटेंट है ये हमारा जाएगा यहाँ से। तो बच्चों ये हमने समझ लिया है कि व्हाट इज द जावा स्क्रिप्ट कंसोल। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कोड के बारे में डिस्कस करेंगे अभी,
एंड आज हम लोग जो हमारे पास बच्चों कंसेप्ट है वो है हमारे पास बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बच्चों मेनली जो जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास अगर हम बात करें तो डेटा टाइप्स, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों की प्रिमिटिव, PREME। प्रिमिटिव का मतलब ये है बच्चों PRIMI, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब ऐसा है बच्चों की जो डेटा टाइप्स मशीन पर डिपेंड है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, ऐसे डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। अगर हम जावा में हम देखें तो बहुत अच्छे लिए समझा जा सकता है कि इंटीजर का जो साइज है वो फिक्स है, इट विल ऑलवेज बी 4 बाइट। ठीक है, और जो क्लास का साइज है वो ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा कम हो। तो साइज ऐसे डेटा टाइप जिनका साइज मशीन पर डिपेंड है, ठीक है, जो हर मशीन पे सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और एक ऐसे डेटा टाइप जिनका साइज मशीन पर डिपेंड नहीं है, जिनका साइज हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जिनका साइज हमारे डेवलपर पे डिपेंड करता है, उन सबको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, या यूजर डिफाइंड या फिर नॉन प्रिमिटिव। तो बच्चों प्रिमिटिव डेटा टाइप की सीरीज में तो हमारे पास पहला डेटा टाइप है वो है नंबर। ठीक है, अब नंबर के अंदर क्या क्या है बच्चों, नंबर के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव हो प्लस होल नंबर हो, या फिर पॉइंट्स वाला, सब कुछ किसके अंदर आता है, हमारा नंबर के अंदर आता है। जबकि बच्चों हमने पाइथन में क्या पढ़ा हुआ है कि जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं वो फ्लोट नंबर कहलाई जाती हैं, जो हमारे होल नंबर्स हैं यानी कि जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, वो हमारे कैसे कहलाए जाते थे, इंट टाइप कहलाए जाते थे। और जिसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट आता है यानी कि लाइक दिस, वो हमारे क्या कहलाए जाते थे, फ्लोट डेटा टाइप कहलाते थे। क्योंकि अब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई कोई भी नंबर है, बस नंबर होना चाहिए, दैट बिलोंग टू इंटीजर ओनली। ठीक है, देन हाउ वी कैन से, लेट मी शो यू। तो हमारे पास डेवलपर कंसोल ऑलरेडी खुला हुआ है, पाइथन का कंसोल है। तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिया बच्चों टाइप टाइप ऑफ टाइप ऑफ, देखो टाइप टाइप ऑफ टेक्स्ट, मैंने ये लिखा, देखो क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। मैंने लिखा 10.23, तभी क्या दिखा रहा है बच्चों, नंबर दिखा रहा है। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वहाँ पर हम फंक्शन यूज करते थे, ये जावा स्क्रिप्ट है बच्चों, यहाँ पर वहाँ पर हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड है यानी कि ऑपरेटर है। ठीक है, और उसके सामने जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो बता देगा कि भाई वो किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, और छोटे छोटे ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10+20, 10+2 12 आ गया। ठीक है, 10-4, ठीक है, मैंने लिखा 100, ठीक है, और देखो इसका क्या आएगा, टू की पावर यानी कि 100 पावर 2, ये पाइथन में हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मैंने लिखा 10 मॉड्यूलस 3 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है हम ये छोटे छोटे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई भी डिजिट हमारी है वो यहाँ पर किस डेटा टाइप के अंदर आती है बच्चों, नंबर डेटा टाइप के अंदर आती है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों दूसरे कंसेप्ट की, तो जो है बच्चों हमारा स्ट्रिंग, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर बच्चों कोई भी अल्फाबेट, मैंने ए लिख दिया, मैंने बी लिख दिया, मैंने अरुण लिख दिया। ठीक है, सब कुछ बच्चों स्ट्रिंग के अंदर है। बट यहाँ पर भी बच्चों एक लिमिटेशन है कि यू नीड टू राइट योर स्ट्रिंग इन सिंगल कोटेशन मार्क और आइदर इन डबल कोटेशन मार्क। नो ट्रिपल कोटेशन मार्क कंसेप्ट इज देयर, दैट इज द पाइथन कंसेप्ट। ठीक है, ट्रिपल कोटेशन या तो सिंगल कोटेशन में आपने लिखा कुछ भी वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा, डबल में आपने लिखा वो भी स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और इससे पहले मैंने लिख दिया टाइप ऑफ। ठीक है, तो देखो क्या दिखा रहा है बच्चों, स्ट्रिंग दिखा रहा है। इफ सपोज, जरा इसको कंसोल को क्लियर कर देते, यहाँ पे लिखा मैंने, मान लेते हैं डबल कोटेशन मार्क में, इससे पहले मैं लिख दिया टाइप, क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है।
नेक्स्ट टाइम राइटिंग इन सिंगल कोटेशन मार्क ए, ठीक है, और मैंने इससे पहले लिख दिया टाइप ऑफ क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है। मैंने लिखा ट्रिपल कोटेशन मार्क, ठीक है, ठीक है, ट्रिपल कोटेशन मार्क, देखो क्या दिखा रहा है, कह रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो कह रहा है कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है जी, ठीक है, ये जो आप यूज कर रहे हो ना, ये कोई स्ट्रिंग नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग को केवल दो ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर। यहाँ पे दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी इजीली काम करता है। जैसे मैंने लिखा पाइथन प्लस प्लस, ठीक है, या 3.11, ठीक है। तो बच्चों मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखिए इसने पूरे को क्या कर दिया कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी सी पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों जबकि पाइथन में हम बात करें तो वहां पे ये था कि इफ यू वांट टू यूज ए प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बोथ आर्ग्यूमेंट शुड बी स्ट्रिंग, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट अगर प्लस ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो वो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जो फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप यहाँ पर है, ठीक है, वो है हमारा बूलियन, BOOLEN, बूलियन डेटा टाइप, ठीक। तो बूलियन के अंदर बच्चों दो ही तरह की वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ मैंने लिखा यहाँ पर ट्रू, देखो कैसे दिखा रहा है, बूलियन वैल्यू दिखा रहा है। मैंने लिखा बच्चों टाइप ऑफ फॉल्स, फॉल्स, तो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, टाइप ऑफ, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो कैसे दिखा रहा है बच्चों, बूलियन वैल्यू दिखा। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो बूलियन वैल्यू आपकी ट्रू या फॉल्स कहलाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाइथन के जैसा नहीं है, यहाँ पे जो एफ है बच्चों फॉल्स का वो स्मॉल है, और ट्रू का जो टी है वो भी स्मॉल है। जबकि पाइथन बच्चों कैपिटल टी और कैपिटल एफ का यूज किया जाता है फॉल्स और ट्रू के लिए, बट यहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों किसका, सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्मॉल एफ और स्मॉल टी, जस्ट लाइक द जावा के अंदर भी सेम। तो यहाँ पर बच्चों बूलियन एक डेटा टाइप है जो हमारा यूज, ठीक है। अब बात आती है बच्चों की यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि सर कैन वी चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कैन वी चेक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे पाइथन, व्हाट आई एम राइटिंग, आई एम जस्ट, मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे पाइथन, ठीक है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि इसकी लेंथ मुझे पता चले, मैं क्या करूंगा, डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ यहाँ पे लिख दूंगा, और ये मुझे बता देगा कि भाई आपने कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी। जबकि वहां पे बच्चों लेंथ फंक्शन यूज होता था, डोंट मिक्स द थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक है बच्चों, तो पाइथन डॉट लेंथ जैसे हम लिखेंगे तो हमें उसकी पता चल जाएगी स्ट्रिंग कि भाई कितने कैरेक्टर का आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा, मान लेते हैं कि भाई पाइथन जैसे लिस्ट वहां पे होता था कि पाइथन, और पाइथन के साथ मैंने लिख दिया, या फिर मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, JSC जावा स्क्रिप्ट, और मैंने इसके साथ बच्चों लिस्ट निकाला, मैंने निकाला 3। तो बच्चों क्या करेगा, ए रिटर्न करेगा। तो जे जो है वो आपका 0 पर, ए 1 पर, V 2 पर, और ए फिर से है 3 पे। मैं 2 करता हूँ, देखिए बच्चों यहाँ पे V रिटर्न करेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम इसकी चेक करें बच्चों की लेंथ कितनी है, लेंथ है बच्चों, लेंथ कितनी है, लेंथ है सर 10, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 9, तो 9 में क्या रिटर्न करेगा सर, टी रिटर्न कर देगा, कोई डाउट है, ठीक है। 9 में क्या, सी 0 से लेके 10 कैरेक्टर हैं, 0 से लेके 9 तक, 1 3 4 5 7 8 को डॉट लगा रखा है, माई मिस्टेक, ठीक है। तो क्या कर रहा है बच्चों, टी रिटर्न कर दिया इसने। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं जावा स्क्रिप्ट 9 की जगह 10, अब 10 तो बच्चों यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये एरर कुछ नहीं देगा, लेकिन बोलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर एक ये टाइप है, जैसे नन टाइप होता था ना, नन टाइप, वैसे ही एक यहाँ पर ये भी टाइप है, पाइथन में नन होता था, यहाँ पे भी एक टाइप है अनडिफाइंड। जब ये ऐसा देखेगा कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या ये पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत बोलेगा कि अनडिफाइंड। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अरुण, और इसके साथ लिख दिया मैंने -1, मान लेते हैं,
ठीक है। तो बच्चों इसमें भी क्या दिखा रहा है, देखो अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, नेगेटिव इंडेक्स नहीं होती पाइथन की तरह इसमें, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स नहीं है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो -1 लिखा तो क्या दिखा रहा है कि वो दिखा रहा है अनडिफाइंड, कह रहा है कि भाई ये इंडेक्स जो है अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स का कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव very important concept. So next we have just here function, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ द बच्चों वेरिएबल बच्चों जावा, अगर हम यहाँ पे बात करें जावा स्क्रिप्ट की बात करें, जावा स्क्रिप्ट में बच्चों जो वेरिएबल है वही है जैसे कि पाइथन में होता था। तो वेरिएबल यहाँ पर मतलब ए कंटेनर, ए प्लेस वेयर वी कैन होल्ड सम वैल्यू। तो यहाँ पर जो बच्चों वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा है, वेयर इज द कीवर्ड एंड वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आप देंगे। अगर हम पाइथन की बात करें तो सिंपल हमें वेरिएबल का नेम लिखना होता था, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ना वहां पर हमें डेटा टाइप बताना था, ना यहाँ पर हमें डेटा टाइप बताना है, बट var हमें लिखना पड़ेगा बिफोर द वेरिएबल नेम, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है। तो var लिखते ही जो भी हम इसके आगे लिखेंगे वो हमारा वेरिएबल नेम बन जाएगा एंड वी कैन, तो बेस्ड ऑन द वैल्यू लाइक आई एम लाइकिंग a इक्वल टू 100, ठीक है। तो 100 किस तरह का वैल्यू है जावास्क्रिप्ट के हिसाब से, प्लीज कंफर्म व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यस मैंने आपको बताया कि 100 किस टाइप को बिलोंग करेगा इन जावास्क्रिप्ट, यस ठीक है, वेरी गुड एकता, इट बिलोंग टू नंबर कैटेगरी, दैट्स वेरी नाइस। तो अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो बच्चों बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू जावास्क्रिप्ट decided कि what type of value you assigned to it and it will return that if I check the type of a it will return number, क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। if I am writing var a equal to true, var a equal to true, now what happened in this case, in this case also on the behalf of this value, JavaScript decide what type of value you assigned, and if I check the type of a it will return boolean, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बूल नहीं है, पूरा वर्ड है बूलियन, तो बूलियन रिटर्न करेगा। ये कंसेप्ट सेम पाइथन में भी था। नाउ if the person who are learning this JavaScript first time, so वो शायद नहीं पता होगा, बट अगर पाइथन आपने पहले पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको पता, ये सेम कंसेप्ट पाइथन में भी था, बस हम यहाँ पे वेयर नहीं लिखते थे। हाँ, तो व्हाट दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, कि जहां पर वेरिएबल का टाइप में देना नहीं है, बेस्ड ऑन द वैल्यू टाइप इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, व्हाट दिस फीचर इज कॉल्ड, यस who will give me the answer, anyone, yes anyone, based on the value type is automatically declared, what this concept called, this concept is called dynamically 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 typed language, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट फीचर था पाइथन का, ये जावास्क्रिप्ट का भी सेम फीचर है, बस हमें वेयर लिखना होता है, बट हमें डेटा का टाइप नहीं लिखना। जैसे अगर हम जावा की बात करें तो वहाँ पे हमें लिखना होगा बच्चों इंट a इक्वल टू 100। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों a 100 कब होगा, जब हम इससे पहले इंट लिख देंगे। अगर हमने गलती से पहले यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, फ्लोट वैल्यू हो जाएगी, और गलती से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया तो इस पर तो एरर ही दे देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये आपने स्ट्रिंग तो बना दिया लेकिन वैल्यू कैसे साइन कर रहे हो, तो इंटीजर साइन कर रहे हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट वेरिएबल का नाम लिखे और बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट लैंग्वेज डिसाइड, पाइथन विल डिसाइड इन दिस केस, एंड इन द जावास्क्रिप्ट वी हैव टू राइट वेयर
वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू। ये खुद से डिसाइड करेगा कि आपने किस तरह की वैल्यू इसको असाइन की है, एंड ये इस बिहाफ पर वैल्यू को डिक्लेयर कर देगा एंड वैल्यू के टाइप को भी डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, लेट मी शो यू द क्विक थिंग। लाइक आई एम राइटिंग वेर a इक्वल टू 10 एंड if I well a इक्वल टू 10, कोई बात नहीं, वो अनडिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल जब डिक्लेरेशन देंगे ना, क्योंकि हमने यूज नहीं किया। देखो मैं यहाँ पे a प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट कर रहा है, 10 प्रिंट कर रहा है। मैंने क्या a प्लस a तो क्या करेगा, 20 प्रिंट कर देगा। इफ आई चेक टाइप ऑफ a तो क्या कर रहा है, नंबर कर रहा है नहीं कर रहा है। अब मैंने लिखा बच्चों वेर इक्वल टू, सेम वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट मोमेंट आई एम असाइनिंग ट्रू। ठीक है, तो इफ आई चेक टाइप of a, so in that case it's written a, true, a boolean। ठीक है, so what happened here, if I use a as a number, next moment same variable can be changed for the other type also। ठीक है, just like file। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये कैसी लैंग्वेज हो गई, कैसी लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, कैसी लैंग्वेज हो गई बच्चों, ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, एंड बच्चों जैसे कि अगर हम बात करें पाइथन में और जावा स्क्रिप्ट में, वेरिएबल्स के जो नाम है ना, वेरिएबल्स के जो नाम है वो बेसिकली दो तरीके से डिसाइड होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट सपोज करता है बच्चों कैमल, कैमल केस, ये मैंने पाइथन में आपको बताया था। कैमल केस मतलब सपोज आप यू आर राइटिंग ए वेरिएबल नेम, यू आर राइटिंग मोबाइल नंबर। ठीक है, तो कैमल केस कहता है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द लोअर, देन every new word start from upper। ठीक है, every new word first letter start from the upper, that concept is called camel case। ठीक है, कैमल केस। बच्चों ये कंसेप्ट किसका है, ये कंसेप्ट बच्चों जावा का है, ये कंसेप्ट बच्चों जावा स्क्रिप्ट का है। ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत ऐसा नहीं कि इसको हम पाइथन में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना सिग्नेचर कि भाई किसने दिया, जावा ने दिया, जावा स्क्रिप्ट ने दिया। ठीक है, बोथ यूजिंग सेम। अगर हम बच्चों पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी हम ये यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कैमल केस का वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन पाइथन में एक और कंसेप्ट है कि अगर हमें मोबाइल नंबर यूज करना है पाइथन में, है ना, तो हम लिखेंगे MOB_num, यहाँ पे अंडरस्कोर का कंसेप्ट यूज। ठीक है, पाइथन। और इस कंसेप्ट को जैसे हम कैमल केस कह रहे हैं, ऐसे इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्नेक केस। इस कंसेप्ट को कहते हैं स्नेक केस। ठीक है, आप चाहें तो इसको सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। ऐसा मैं अपनी तरफ से बता, दिस इज ऑलरेडी ये डिफाइंड टर्मिनोलॉजी। तो पाइथन के अंदर जो ये आप अंडरस्कोर का कंसेप्ट लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्नेक केस। यहाँ पर जो मेरे कैमल केस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कैमल होता है ना, कैमल, ये आपने लोअर से स्टार्ट किया, आप अपर गए, फिर आपने नेक्स्ट पढ़ लिया, फिर आप अपर गए, इस तरीके से कैमल केस। स्नेक लाइक। ठीक है, जैसे मैंने कोई बड़ा वर्ड ले लेता हूँ, एनुअल, ANN एनुअल, ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल का नेम दिया। तो बच्चों क्या हो रहा है, देखो स्नेक छोटे छोटे मूवमेंट्स में, है ना, ऐसा हो रहा है ना। अगर स्नेक को आपने पीछे से देखा है तो उसके अंदर पैर होते हैं ना, तो उनके बीच में हल्का हल्का गैप होता है, पैर होते हैं ना, तो उनमें हल्का हल्का गैप होता है स्नेक को अगर आप देखेंगे तो। इसलिए पाइथन सम स्नेक से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो बच्चों ये वेरिएबल का टाइप है, स्टाइल है, उसको हम कहते हैं स्नेक केस। जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये स्टाइल यूज होता है, उसको हम कहते हैं क्या, कैमल केस। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, राइट। नाउ वन थिंग इज हियर। अभी हमने बच्चों एक कंसेप्ट पढ़ा कि वी हैव ए कंसेप्ट ऑफ व्हाट, undefined, right? Let's suppose in JavaScript also, if we declare a variable where a, and we not assign any value, ये बोलेगा undefined, क्योंकि in JavaScript also variables are only declared when we assign value to them। अगर हम उन्हें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो पाइथन में चीजें एरर आ जाता था।
लेकिन यहाँ पर ही क्या बोलेगा उसको, अनडिफाइंड कहेगा कि भाई आपने डिफाइन नहीं किया, आपने यूज किया। तो पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं वो तभी क्रिएट किए जाते हैं जब आप उन्हें कोई वैल्यू असाइन, जैसे मैंने यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेर ए, अच्छा सेमीकोलन लगाना, लगाओ या मत लगाओ ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसमें ऐसा कोई लगाना ही है कि पहले ओल्डर वर्जन्स में जावास्क्रिप्ट के ये लगाना कंपलसरी था, लेकिन अगर हम न्यूअर वर्जन्स की बात करें तो वहाँ पर ये लगाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल यूज़ किया और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो इन दैट केस वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड कह रहा है, ठीक है। एक और यहाँ पर जो लास्ट डेटा टाइप है, जैसे एक अनडिफाइंड डेटा टाइप मैंने आपको बताया, एक है बच्चों नल, नल, नल का मतलब है नथिंग, नथिंग, ठीक है, नो नो वैल्यू। जैसे जैसे मान लेते हैं कि यू आर प्लेइंग ए गेम, ठीक है, आप एक गेम खेल, आपने एक वेरिएबल लिया, आप प्लेयर पी वाई ए, प्लेयर का आपने कोई नाम दे दिया, मान लेते हैं अपना नाम। तो बच्चे यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा प्लेयर पी वाई ए प्लेयर, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, अरुण करेगा। नेक्स्ट मोमेंट मेरा गेम ओवर हो गया, गेम ओवर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि भाई अब प्लेयर कौन है, गेम तो ओवर हो गया, गेम ओवर हो गया, अभी प्लेयर कौन है, तो जैसे गेम ओवर हो गया तो प्लेयर को असाइन कर दिया हमने नल, मतलब नथिंग, ठीक है। तो इफ आई डू प्लेयर 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 की अगर मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट कर रहा है, नल। भाई करंटली कोई भी प्लेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब गेम अभी नहीं चल रहा है, जो पहले गेम चल रहा था जो अरुण नाम का प्लेयर था वो उसका गेम ओवर हो चुका है, वो खेलना उन्होंने बंद कर दिया है, तो अभी कोई प्लेयर नहीं है। तो व्हेन वी आर शोइंग दैट नथिंग, नथिंग जैसे नट वहां पर होता है ना पाइथन में, ऐसे सेम नल, नल नल मतलब एम्प्टी, नथिंग, नथिंग मींस नल वैल्यू मींस नथिंग, नो नो वैल्यू, दैट इज नॉट स्पेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेस है, स्पेस नहीं, नल, ठीक है, नथिंग, नथिंग को शो करने के लिए वी यूज नल, नल वैल्यू। इज इट क्लियर? यस, यस, प्लीज टेल। Yes, please tell. This is clear to all. Okay. So this is all about today. And कल हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कल हम वो लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।